A very good morning to all of you students. Welcome to the psychology class. We are continuing chapter number 7, social influences and group processes, in which we have studied about the group. Okay, the concept of group, the types of group formation, and the reasons why people join group. After that, the social influences. So in social influences, the concept of conformity, compliance and obedience. ठीक है. आफ्टर दैट हमने कॉपरेशन एंड कंपटीशन एक टॉपिक पढ़ा, ग्रुप पोलराइजेशन एंड सोशल लूफिंग. सो मेनी टॉपिक्स we have already covered in this chapter, and we are in the last section of this chapter. And in just previous video we had discussing some topic like intergroup conflict. ठीक है. So we understand the nature of intergroup conflict and the basic reasons. ठीक है. So today we are going to discuss the consequences of group conflict. क्या क्या उसके consequences हो सकते हैं, and how we resolve it, the strategies through which we control or the resolve the intergroup conflict. ठीक है, which is the last topic of your chapter. Today is chapter 7. I think complete हो जाएगा. Okay, so continuing the topic, intergroup conflict. Conflicts between groups give impetus to a series of social and cognitive processes, and these processes harden the stand of each side, leading to in-group polarization. And this may result in coalition formation of like-minded parties, and thereby increasing the apprehensions of both parties, resulting in misperceptions and biased interpretations and attributions. So the result is increased conflict, and present day society is fraught with various intergroup conflicts. These are related to caste, class, religion, reason, language, and just to name a few of them. Okay. So Gardner Murphy wrote a book entitled In the Minds of Men. Most conflicts begin in the minds of men, and then go to the field. Explanation of such conflicts can be at the structural, group and individual level. ठीक है. So Gardner Murphy ने जो book write down की थी अपनी, जो the title is the In the Minds of Men. ठीक है, ये title था उस book का. उसमें इन्होंने बताया कि 3 levels पे ये जो conflict है ये rise होता है, in the structural level, then group, then individual level. ठीक है. So इन तीनों को explain करेंगे. Gardner Murphy. ठीक है. The book name is In the Minds of Men. ठीक है. The 3 level is structural, group and individual. इन 3 levels पे basically process होता है, function होता है. So structural, that means conditions include high rate of poverty, economic and social stratifications, inequality, limited political and social opportunity, etc. So researchers on group level factors have shown that social identity, realistic conflict between group over resources, and unequal power relations between group leads to escalations of conflict. ठीक है. ग्रुप लेवल पे क्या क्या चीजें हैं? आइडेंटिटी, रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ग्रुप ओवर रिसोर्सेज एंड अनइक्वल पावर रिलेशंस. ठीक है. एट द इंडिविजुअल लेवल, बिलीव्स, biases, attitudes and personality characteristics are important determinants.
and it has been found that at the individual level there is a progression along a continuum of वॉयलेंस. ठीक है, तो ये तीन रिसोर्सेस हम कह सकते हैं कि जो इस 3 लेवल पे होता है, हमारे स्ट्रक्चरल लेवल, ग्रुप लेवल और इंडिविजुअल लेवल पे. डेफिनेटली इंडिविजुअल लेवल पे हमारी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारी एटीट्यूड, बिलीफ, प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप, ठीक है, ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी. ग्रुप लेवल पे जो हम कह सकते हैं कि जो चीजें हमें डिप्राइव कर रही हैं, ऐसे रिसोर्सेज, ठीक है, पावर का रिसोर्स है, स्टेटस है, पावर है, और सोशल आइडेंटिटी है, ठीक है, ये सारी चीजें वैल्यूएबल होंगी. स्ट्रक्चरल लेवल पे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और जो कंडीशंस है, फिजिकल कंडीशन है, पॉवर्टी का स्टेटस है, इकोनॉमिकल कंडीशंस, ठीक है, सोशल कंडीशंस, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें स्ट्रक्चरल लेवल पे इन्वॉल्व होंगी. और इसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये रिसोर्सेज कॉन्फ्लिक्ट को इन सोर्सेज की वजह से मिलती है, एंड दैट्स व्हाई ये रिसोर्सेज अराइज होती हैं. So very small acts that initially may have no significance, like calling the other group a name, might lead to psychological change that make further destructive action possible. ठीक है, so Deusch identify the following consequences of intergroup conflict. क्या क्या consequences हो सकते हैं, ये Deusch ने एक स्टडी की और उसके बेसिस पे इन्होंने एक्सप्लेन किया. So this consequences of group conflict. ठीक है, जो इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होता है उसकी क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. So 4 consequences Deusch ने आइडेंटिफाई किए हैं. फर्स्ट इज communication between the group become poor. ठीक है, and the group do not trust each other and thereby leading to a breakdown in communication, and this generates suspicious for each other. ठीक है, सबसे फर्स्ट जो कि हमारे जो consequences आता है, जो communication होता है वो poor हो जाता है. ठीक है, कम्युनिकेशन बिकम पुअर. ठीक है, जो भी ग्रुप के बीच में कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ही पुअर लेवल का होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे मिसपरसेप्शंस, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स अराइज होती हैं, जो कि कॉन्फ्लिक्ट का अल्टीमेटली जो है कि कॉन्सिक्वेंस होता है. नेक्स्ट इज ग्रुप स्टार्ट्स मैग्नीफाइंग देयर डिफरेंसेस एंड स्टार्ट परसीविंग देयर बिहेवियर एज फेयर एंड द अदर्स बिहेवियर एज अनफेयर. ठीक है, group starts magnifying things, magnifying their differences and start perceiving their behavior fair and others behavior unfair. ठीक है, अपने बिहेवियर को फेयर और अदर इंडिविजुअल के बिहेवियर को अनफेयर बताने लगते हैं. एंड बेसिकली जो परसेप्शन होता है वो मिस हो जाता है, मिस परसेप्शन होता है, ये फॉल्स परसेप्शन होता है, इसके बेसिस पे ये सारी चीजें होती है. जो भी अगर छोटा सा भी पॉइंट मिलेगा, छोटा सा भी रीजन मिलेगा, उसे मैग्नीफाई करने लगते हैं. ठीक है, ये सारी चीजें होने लगती हैं, कॉन्सिक्वेंसेस. देन नेक्स्ट इज
each side tries to increase its own power and legitimacy. Its own power and legitimacy. As a consequence, the conflict gets escalated and shifting from few specific issues to much larger इशू. ठीक है, अगर थोड़ी सी 2-4 पॉइंट पे इश्यूज होते हैं किसी दो ग्रुप में, इन ग्रुप और आउट ग्रुप में, तो उसको इतना ज्यादा मैग्नीफाई कर दिया जाता है, इतना ज्यादा उसमें जो कि पावर को प्रूफ करने का टेंडेंसी इतना ज्यादा इनहैंस हो जाता है कि उसके बेसिस पे जो स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं वो भी मच लार्जर इश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं. ये एक सीरियस कॉन्सिक्वेंस होता है इस टाइप की ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट का. देन नेक्स्ट वन इज, once conflict starts, several other factors lead to escalations of conflict and hardening of in-group opinion and escalated threats directed at the out-group, and each group retaliating more and more, and other parties also choosing to take sides leads to escalation of conflict. ठीक है, बहुत सारी पार्टीज इसमें और इन्वॉल्व होने लगती हैं, जो चीजें होती हैं वो और निगेटिव होती जाती हैं और चीजें इंक्रीज होती जाती हैं. ठीक है, जो ओपिनियन होता है वो और हार्डनर और स्ट्रांग होता जाता है क्योंकि अदर पार्टीज भी उसको फेवर करने लगती हैं. ठीक है, सो अल्टीमेटली ये जो चीजें होती हैं इसकी वजह से बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होता है क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होने लगते हैं, बहुत सारे, सो मेनी ग्रुप्स आर इन्वॉल्व देयर. ठीक है, दिस इज ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट. नाउ मूव टू द कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग स्ट्रेटजीज. Conflict resolution strategies. So conflicts can be reduced if we know about their causes. So definitely we know the causes, and the processes that increase conflict can be turned around to reduce it also. A number of strategies have been suggested by psychologists, and some of these are given below. Okay, so first one is introduction of subordinate goals. Introduction of subordinate goals. I think visible नहीं है. I think अब visible है. So introduction of subordinate goals. So Sherif studies already mentioned in the section of cooperation and competition shows that by introducing subordinate goals in intergroup conflicts can be reduced. A subordinate goal is mutually beneficial to both parties, hence both groups work cooperatively. ठीक है, so definitely in the context of cooperation and the competition, हमने शेरिफ की जो स्टडी पढ़ी थी, ठीक है, वो 4 जो ब्लॉक्स के डायग्राम के बेसिस पे मैंने बताया था. सो डेफिनेटली जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो गोल है, जो टारगेट है, वो 50-50% दोनों ही पार्टीज को अचीव हो रहा है, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं उस वर्क के वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं यदि भी दो ग्रुप्स में, दो पार्टीज में. सो डेफिनेटली वहां पे हम कॉपरेशन वे में वर्क करते हैं. सो डेफिनेटली जो रीजंस हैं, जो कॉजेज हैं जिसके थ्रू हम कॉपरेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट
कंपटीशन को डिक्रीज कर सकते हैं, वो चीजें अगर हम करेंगे, सबऑर्डिनेट गोल्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, सो डेफिनेटली इसके थ्रू जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे हम रिजॉल्व कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज अल्टरिंग परसेप्शंस। Altering perceptions. So as you know, the reason of the intergroup conflict is the misperception, ठीक है, false perception, एक दूसरे के बारे में जो व्यू पॉइंट है वो निगेटिव होता है, हम एक बायस्ड वे में परसेप्शन करते हैं, दैट्स वाई ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। सो डेफिनेटली व्हेन वी अल्टर अवर परसेप्शन, हम जब अपने परसेप्शन को चेंज करेंगे, एक ट्रांसपेरेंस वे में और जेन्युइन वे में चीजों को हम परसीव करेंगे विदाउट सीइंग दैट कि ये इन ग्रुप है वो आउट ग्रुप है। सो अगर हम ऑनेस्टली सारी चीजों को एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंसी वे में असेस करेंगे, सो डेफिनेटली हमारा जो परसेप्शन होगा वो इंक्रीज होगा, एक एकदम लॉजिकल लेवल पे होगा, रीजनिंग लेवल पे होगा, ना कि इमोशनल लेवल पे। सो हम अल्टरिंग परसेप्शन, दैट्स मीन अपने परसेप्शन को अल्टर करके भी इस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, इसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो कॉन्फ्लिक्ट्स कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड बाय अल्टरिंग परसेप्शन एंड reactions through persuasions, educational and media appeals, and portrayal of group differently in society. So promoting empathy for others should be taught to everyone and right from the बिगनिंग, ठीक है। सो डेफिनेटली एक इक्वालिटी और एक कह सकते हैं कि एम्पैथी की फीलिंग सभी के लिए होनी चाहिए। इस टाइप से अगर हम बिगनिंग से ही एजुकेशन सिस्टम में ही ऐसी चीजें डालेंगे और एक इक्वालिटी की चीजें स्प्रेड करेंगे सोसाइटी में, सारी चीजों को बिगनिंग से ही अच्छी चीजें सिखाएंगे, सो डेफिनेटली इस तरह के परसेप्शन, फॉल्टी परसेप्शंस नहीं होंगे और इसके थ्रू हम इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग इंटरग्रुप कॉन्टैक्ट, ठीक है, मैं कॉन्फ्लिक्ट पढ़ रही थी, दैट्स व्हाई आई एम कंफ्यूज्ड। सो इंक्रीजिंग इंटरग्रुप कॉन्टैक्ट, ठीक है। सो जैसे ही इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट जो है वो इंक्रीज होगा, इंटरैक्शन इंक्रीज होगा इन ग्रुप और आउट ग्रुप में, सारे मेंबर्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। सो इसके बेसिस पे जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो फॉल्टी थिंकिंग है हमारी, जो प्रेजुडिसेस हैं, वो सारे रिजॉल्व हो पाएंगे और इसके बेसिस पे कॉन्टैक्ट इंक्रीज होने के साथ ही बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो ये भी इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करने का, कंट्रोल करने की एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है, प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी है। सो कॉन्फ्लिक्ट्स कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग कॉन्टैक्ट्स बिटवीन द ग्रुप्स एंड दिस कैन बी डन बाय इन्वॉल्विंग ग्रुप इन कॉन्फ्लिक्ट ऑन natural group through community projects and events. So the idea is to bring them together so that they become more appreciative of each other's stand. And however, for contact to be successful, they need to be maintained, so which means that they should be supported over a period of time, ठीक है। so different community, different religion, caste, बहुत सारे अलग जगहों के लोग जब एक साथ कलेक्टिव वे में कोई वर्क करेंगे, दूसरे से कांटेक्ट करेंगे, किसी भी प्रोजेक्ट्स को लेके, किसी भी इवेंट्स को लेके, सो डेफिनेटली एक दूसरे के आइडियाज को एक्सेप्ट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, एंड इस वे में जब एक अच्छे लेवल का कांटेक्ट इनिशियली डेवलप होगा, सो उसे वो आगे कंटिन्यू भी करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे इन द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। सो दैट्स व्हाई जो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे वो डिक्रीज होंगे, और अगर कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ प्रीवियसली हैं भी पास्ट में, सो वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज रीड्रॉइंग ग्रुप बाउंड्रीज। Redrawing group boundaries. So another technique that has been suggested by some psychologists is redrawing the group boundaries. This can be done by creating conditions where group boundaries are redefined and groups come to perceive themselves as belonging to a
कॉमन ग्रुप। ठीक है, डेफिनेटली जो एक ग्रुप की नैरो बाउंड्रीज हैं उससे हम रीडिफाइन करें और एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में ले जाएं। ठीक है, सो इसके थ्रू भी हम इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सो जो बाउंड्रीज है, जो रिस्ट्रिक्टेड बाउंड्रीज है, उसे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाने की जरूरत है। आउटसाइड मेंबर्स को भी वेलकम होना चाहिए और इवन आपको एक जो ब्रॉडर आपकी आइडेंटिटी है सो उसे ज्यादा इनहेंस करना चाहिए। ये सारी चीजों के थ्रू हम अपनी बाउंड्रीज को रीडिफाइन करके भी इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज negotiations. The fifth one is negotiation. Okay. So conflicts can also be resolved through negotiations and third party interventions. So warning group can resolve conflict by trying to find mutually acceptable solutions. So this required understanding and trust. So negotiations refers to reciprocal communication so as to reach an agreement in situations in which there is a conflict. ठीक है, बेसिकली negotiation that means entering the third party. ठीक है, जब भी आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा बढ़ जाए, इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाए, तो उसके बाद आपको थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए जो कि एक बीच का रोल प्ले करे और आप दोनों की पॉइंट को विदाउट एनी बायस ट्रांसपेरेंस वे में अंडरस्टैंड करे और एक बीच का रास्ता निकाले बेसिकली। ठीक है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक एग्रीमेंट हो जहां पे आपके भी कुछ पॉइंट्स को एक्सेप्ट किया जाए, हमारे भी कुछ पॉइंट को एक्सेप्ट किया जाए। अल्टीमेटली जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको पोस्टपोन कर दिया जाए, जो कॉन्फ्लिक्ट से जो फीडबैक बहुत ही निगेटिव आने वाला है उसे पोस्टपोन कर दिया जाए और कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक तरह का एग्रीमेंट कर लिया जाए। इस टाइप की चीजें होती हैं। सो दिस इज द नेगोशिएशन. सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट and sometimes it is difficult to dissipate conflict through negotiations. At that time mediation and arbitrations by a third party is needed, and mediators help both parties to focus their discussions on the relevant issues and reach a voluntary agreement. So in arbitrations the third party has the authority to give a decision after hearing both parties. ठीक है, so definitely हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वहां पे भी ये सारी चीजें हैं कि आप दोनों पार्टीज को सेपरेटली जो है कि लिसन करते हो, उसकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हो, आफ्टर दैट एक डिसीजन देते हो। ठीक है, तो ये जब कॉन्फ्लिक्ट हायर लेवल का हो जाए तो आप डेफिनेटली एक मीडिएटर को रोल प्ले करना पड़ता है और एज अ मीडिएटर वो या तो डिसीजन दे सकता है, दिस इज दी आर्बिट्रेशंस, एंड इन दी मेडिटेशंस यहाँ पे दोनों पार्टीज की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोई सॉल्यूशंस फाइंड आउट किया जाता है, कुछ एग्रीमेंट्स टाइप का किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज द नेगोशिएशन. नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस. ठीक, so in the structural solutions, conflicts can also be reduced by redistributing the societal resources according to principles based on justice. So researchers on justice has identified several principles of justice. Some of these are equality. Okay, that means allocating equality to everyone. Need, that means allocating on the basis of needs, and equity, that means allocated on the basis of कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंबर्स. ठीक है, सो जहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं, जो भी सोसाइटल रिसोर्सेज हैं, उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो इन एवरी ग्रुप. ठीक है, जो भी ग्रुप हैं उनमें एक इक्वल वे में डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वालिटी इन द टर्म्स ऑफ 3 बेसिक पार्ट में हम एक्सप्लेन करें, इन द टर्म्स ऑफ नीड, इन द टर्म्स ऑफ मेंबरशिप या इन्वॉल्वमेंट, एंड इन द टर्म्स ऑफ जो है कि allocated equality to everyone. ठीक है, मतलब सबको चीजें इक्वली मिलनी चाहिए ऑन द पर्पज ऑफ नीड और दी इन दी मेंबरशिप. ठीक है, दोनों लेवल पे, तीनों लेवल पे चीजों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए. सो दिस इज द स्ट्रक्चरल सोल्यूशन. ये एक प्रैक्टिकल और स्ट्रक्चरल सोल्यूशन है जिसके बेसिस पे इस तरह की इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज रिस्पेक्ट फॉर अदर ग्रुप्स नॉर्म्स.
So seventh and the last point is respect for other group norms. ठीक है, अदर ग्रुप के जो नॉर्म्स हैं उन्हें रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए. So in a pluralist society like India, it is necessary to respect and be sensitive to the strong norms of various social and ethnic groups, and it has been noticed that a number of communal rows between different groups have taken place because of such insensitivity. ठीक है, so जो भी sensitivity है उसके लिए, जो भी सेंसिटिव इशू है किसी रिलीजन, किसी कास्ट, किसी ग्रुप के लिए, सो डेफिनेटली उसे रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए. दैट्स नॉट मीन कि ये हमारे यहाँ जो है कि हमारे यहाँ ये रिचुअल नहीं, हमारे यहाँ ये कस्टम नहीं, हमारे यहाँ ये चीजें नहीं चलती, सो दैट्स व्हाई हम नहीं फॉलो करेंगे. डोंट वरी, यू मतलब आप फॉलो मत करो, डोंट फॉलो, बट एटलीस्ट रिस्पेक्ट फॉर सम अदर वंस नॉर्म्स. ठीक है, जो भी अदर ग्रुप के जो नॉर्म्स हैं उन्हें एटलीस्ट रिस्पेक्ट तो करो. दिस इज नेसेसरी. सो दीज आर द conflict resolving strategies, the introduction of subordinate goals, then alternating perception, then increasing intergroup contact, and redrawing group boundaries, negotiations, structural solutions, and respect for other groups norms. ठीक है, इसके beyond भी बहुत सारे solutions हो सकते हैं. So definitely आप अपने level पे जो भी इस टाइप के solutions आप के ब्रेन में कोई आइडिया आ रहा है, आपके ब्रेन में कोई थॉट आ रहा है इससे रिलेटेड, सो यू कैन शेयर विथ मी. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 7. टुडेज योर सिलेबस इज कंप्लीटेड. ठीक है, 7 चैप्टर है, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 ड्यू टू कोविड-19 एलिमिनेट कर दिया गया है आपके सिलेबस से. डेफिनेटली आपको सिर्फ 7 चैप्टर तक ही सिलेबस में कंप्लीट करना है, और आज आपका चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया. एंड इन नेक्स्ट वीडियो हम इससे रिलेटेड एक समरी डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड अदर क्वेश्चंस, वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, सो अभी क्योंकि कुछ टाइम है तो हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 का, जो भी समरी वे में है कि हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में. ओके, So this chapter is basically social influences and group processes. So definitely इसमें हमने group के बारे में पढ़ा. What is group? The features of group, types of group, why people join group, हम किन किन reasons से group को join करते हैं. Then what is the process of group formation? क्या stages हैं जिसके through किसी group का formation होता है. ठीक है. After that cooperation, competition, social loafing, ग्रुप पोलराइजेशन, ये सारे डिफरेंट टर्म्स, डिफरेंट नए जो है कि फिनोमिना हमने अंडरस्टैंड किए इन दिस चैप्टर. एंड उसके बाद इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, उसका नेचर क्या है, कॉजेस क्या है, और अल्टीमेटली क्या रिजॉल्विंग स्ट्रेटजीज है, किस तरह से हम उसे रिजॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सो ये इंटरेस्टिंग और अच्छा चैप्टर था. आई थिंक मैंने ये बॉक्स मिस किया है इस चैप्टर में. ठीक है, सो ये बॉक्स को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. द बॉक्स 7.5. ठीक है, सो शेरिफ समर ग्रुप कैंप एक्सपेरिमेंट, समर कैंप का जो शेरिफ का एक्सपेरिमेंट था, अ जर्नी फ्रॉम इन ग्रुप फॉर्मेशन टू इन ग्रुप कॉम्पिटिशन एंड फाइनली इन ग्रुप कॉपरेशन. ठीक है, सो कॉपरेशन टू कॉम्पिटिशन एंड देन फॉर्मेशन टू कॉम्पिटिशन देन कॉपरेशन. ठीक है, ये शेरिफ का एक एक्सपेरिमेंट था. Sherif conducted a series of experiments on 11 to 12-year-old boys and who did not know each other. The boys were attending a summer camp and unknown to the boys, so there were researchers in the camp who examined their behavior. So the experiment consists of 4 phases: friendship formation, group formation, intergroup competition and intergroup cooperation. ठीक है, so in the friendship formation, when the boys arrived at the camp, they spent the initial time together and they mixed freely with each other and choose their friends for game and other activities. In the second phase, in group formation, so the boys were
then divided into two groups by the experimenter, and the boy belonging to the two groups lived separately, and members within the group engage in cooperative projects to increase cohesiveness. So the group who were given separate names over time, they develop their own norms. In the third phase, in group competition, the two groups were brought together in several competitive situations, and match were organized in which the group competed against each other. The competition brought in tension and hostility against each other as a group, so much so that the group started calling each other name at the same time. In group cohesion and loyalty become stronger. Okay? And in the last phase, intergroup cooperation. So to reduce the hostility generated by intergroup competition, the researchers create a problem which affected both the groups, and both groups wanted to solve. Then subordinate goals could be achieved only through cooperation between the groups, and the water supply of both groups was disrupted. So members of both groups help each other to overcome this. This in-group cooperation phase reduced the hostility, and this result in the development of a subordinate goals, that is a goal to which personal goals were subordinates. Okay, so this research is important as it's shown that antagonistic and hostile behavior can be generated by group situations. So at the same time, it's shown that hostility between group can be reduced by focusing on subordinate goals, and which are important and beneficial to both group alike. ठीक है, so देखा इस स्टडी में कैसे इनिशियली पहले ग्रुप फॉर्म हुआ, किस तरह से ग्रुप बना, ठीक है, उसके बाद एक तरह के से जब ग्रुप को डिवाइड कर दिया गया तो कंपटीशन की फीलिंग डेवलप हुई. आफ्टर दैट कोई ऐसी प्रॉब्लम आई जिसका सोल्यूशन दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होना था, दोनों ग्रुप्स के. तो डेफिनेटली दोनों ग्रुप ने एक दूसरे के साथ हेल्पफुलनेस शो की, एक दूसरे से कलेक्टिव वे में कह सकते हैं कि सबऑर्डिनेट गोल्स को कंप्लीट किया, और इसके थ्रू उनके बीच में कॉपरेशन डेवलप हुआ. सो दीज आर द 4 स्टेप जिसके थ्रू हम कॉपरेशन और कॉम्पिटिशन को अंडरस्टैंड कर रहे थे. Okay, this is all about today, students. Thank you so much.